Good morning, students. Yesterday we have seen types of angles. So once again that I am showing by this activity. So when this is both the rays, this ray and this ray are on the one above, then this is zero angle. When it starts moving, so this formation is acute angle. This is acute when it is 90 degree. Then this is right angle, and this formation is obtuse angle, and when this is straight, then this is the straight angle, and when goes by this way, then this formation is reflex angle, and when completely touching each other, this ray and this ray made when complete round, then this is the complete angle, means 360 degree. So once again you see in descending order, this is 360 degree complete angle. This figure is reflex angle, more than 180 and less than 360 degree. This is straight both sides, this is the straight angle 180 degree. This is obtuse angle, more than, less than 180 and more than 90. This is obtuse. This is exact 90 degrees right angle, less than 90 and more than 0 is acute angle, and when it is completely one above this is the zero angle. Now today's topic is worksheet 1 angle question, and question number 6 we have seen up till question number 5 yesterday. Question number 6, this is figure, we have to reply, is the point P in the exterior of angle ROS? So angle ROS, you see this is O, angle ROS, point P is the exterior, ROS का exterior है, yes, ये ROS है, P उसके बाहर है, तो the answer will be yes. Next question, is the point R in the interior of SOR? Is the point R in the interior of SOR? SOR, R is in interior, क्या SOR के R interior है? No, because this is on the angle, so we will write answer no. Third one, is the point Q in the interior of ROP? ROP, asking Q is in interior, ROP के Q इंटीरियर है, तो यस ROP एंगल का नाम है ROP, तो इसके अंदर है, तो दिस इज यस. D ऑप्शन, इज द D क्वेश्चन, इज द पॉइंट S in the exterior of POQ? POQ का S is the exterior, क्या S बाहर में है? तो यस QOP के बाहर है, तो ये हो गया यस. Now last E, name the point which is interior of POR. POR का इंटीरियर हो और इन द एक्सटीरियर ऑफ SOR का इस एंगल के बाहर हो लेकिन इसके अंदर हो. फिर से देखो, इस एंगल के अंदर और इसके बाहर कौन सा पॉइंट है? तो ये Q. So this is point Q. So this is the answer of question number 6. Question number 7, I have drawn here diagram, north and south. So upside this is called north and this is south. North and south, what is the type of angle? Straight angle. B, north and northwest. ये है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के बीचों बीच को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, NW. This side is called, this direction is called northwest. So between the north and northwest, तो ये है between north and this direction is northwest. So what is the type of this angle? This is only acute angle. C, south and east. So this is the east and this is south. So how much degree this is? Right angle. Right angle means 90 degree. D, east and west. So east and west, this is east and this is west, so this angle will be, east and west will be straight angle. Now question number 8, you will fill in the book, you read these questions and fill in book. Now next topic also I am teaching today, that is adjacent angle.
So this is interesting. Adjacent angle means two angles are called adjacent when that condition we will see. Two angles are called, here I have written its a condition. Adjacent angles कब होंगे? पहला कंडीशन है जैसे दो पड़ोसी रहते हैं, टू नेबर्स रहते हैं, तो क्या उसका कंडीशन रहता है? दोनों आसपास रहना चाहिए। पड़ोसी में होता है अगल बगल, तो वैसे इसका कंडीशन है। एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी एंगल। तो दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन टू बिकम एडजेसेंट एंगल्स? दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। जैसे ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल में, ये एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 में देखो ये जो है दिस इज कॉमन वर्टेक्स, मतलब दोनों का एक ही वर्टेक्स है। इस एंगल का वर्टेक्स भी वो है और इसका भी वो है। तो फर्स्ट कंडीशन इज दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। सेकेंड, दे हैव ए कॉमन आर्म। इसका आर्म क्या है? आर ओ क्यू का, एंगल 1 का ओ आर है और ओ क्यू, और एंगल 2 का कॉमन आर्म क्या है? ओ क्यू और ओ पी। तो दोनों में कौन सा आर्म कॉमन है? दैट ओ क्यू इज द कॉमन इन बोथ। ओ क्यू इज द कॉमन इन बोथ, सो दे हैव ए कॉमन आर्म। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, the other non-common arms lie on the opposite sides of the common arm। मतलब एक तो आपका हो गया कॉमन आर्म, ये इन दोनों एंगल में, ये दोनों एंगल में ये कॉमन आर्म हो गया। अब नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन सा होगा? आर ओ और ओ पी। ओ आर और ओ पी नॉन कॉमन हो गया, तो वो कैसा होना चाहिए बोल रहा है ये कंडीशन कि द नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन। जो अपोजिट साइड है नॉन कॉमन आर्म के अपोजिट, मतलब ये नॉन कॉमन आर्म है उसके एक नीचे तरफ और एक ऊपर तरफ, मतलब एक इधर और एक उधर होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस में जो एंगल फिट होगा दैट विल बी कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। फिर से देखो, फर्स्ट कंडीशन है दे शुड हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव ए कॉमन आर्म, ये बीच वाला कॉमन हो गया, और तो देयर नॉन कॉमन आर्म्स, जो नॉन कॉमन आर्म्स है लाई अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन, कॉमन के एक इधर और एक उधर रहना चाहिए। तो ये है पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड टुमारो विल सी लीनियर पेयर। आज इसी को बस देखते हैं। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडजेसेंट एंगल्स, वर्कशीट 2, फर्स्ट क्वेश्चन यू सी ए डायग्राम है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल पूछ रहा है। तो वी कैन सी हियर, सी एडजेसेंट एंगल बाय दिस एक्टिविटी आल्सो। ये है ये एडजेसेंट एंगल आपका, जो ये और ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन दिस टू आर्म्स एंड दिस टू आर्म्स आर एडजेसेंट, क्योंकि ये और ये दोनों पड़ोसी हैं। कैसे पड़ोसी हैं? बाय 3 कंडीशंस ऑफ एंगल। इन दोनों के पास, इन दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स एक ही है। ये मेरा थंब जो है वर्टेक्स समझ लो, तो ये मेरा थंब वर्टेक्स जो है कॉमन है, इसका भी यही है, इसका भी यही है कॉमन वर्टेक्स। दे हैव ए कॉमन आर्म, तो इन दोनों एंगल में कौन कॉमन आर्म है? ये वाला। ये दिस एंगल इज मेड बाय दिस टू आर्म्स एंड दिस एंगल इज मेड बाय दिस टू आर्म, तो इन दोनों में कौन कॉमन हुआ? ये वाला। एंड तीसरा पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये कॉमन है तो ये नॉन कॉमन हो गया, तो नॉन कॉमन आर्म्स है दे शुड लाई अपोजिट ऑफ कॉमन, मतलब कॉमन के एक इधर होना चाहिए और एक उधर होना चाहिए। तो ये और ये एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, एंगल 1 और एंगल 2 को पूछा है क्या ये एडजेसेंट है? नहीं, दे डोंट हैव कॉमन आर्म एंड दे डोंट हैव कॉमन वर्टेक्स, दोनों कंडीशन। तो इफ आउट ऑफ दिस 3 एनी कंडीशन do not match, any condition they don't match means what we will say, this is not a adjacent pair। तो इसमें क्या है, दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो नहीं हुआ। अब इसको देखो, यस इसमें पूरा सब मैच कर रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग दिस, ये ऐसे था, पड़ोसी है, ऐसे बना दिया तो भी पड़ोसी रहेंगे। मान लो इसका दीवार ऐसे है, ये घर है, ये घर है, पड़ोसी है, ये अपना दीवार ऐसे किया तो भी तो कॉमन है ना वॉल, तो पड़ोसी ही रहेंगे, तो यस एडजेसेंट है। ये कंडीशन देखो, एंगल 1 है और एंगल 2 पूरा लिया है,
एंगल 2 पूरा लिया है और एंगल 1 ये है, तो क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? नहीं। ये कैसा कंडीशन है? एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये ले रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या ये एडजेसेंट है? नहीं है, क्योंकि ये एंगल तो इसी एंगल के अंदर है, तो कैसे पड़ोसी हुए? ये मतलब ये पूरे, ये मान लो किसी का एक घर है, ये किसी का एक फैमिली है, और ये उसके अंदर क्या है? वो फैमिली मेंबर है, एक बेडरूम है समझ लो, तो ये पूरे घर का एक, ये क्या हुआ? एक, यदि ये पूरे घर को लेते हैं तो वो एक उसके अंदर का एक कमरा हुआ, तो दे आर नॉट एडजेसेंट। तो ये इस पूरे का एडजेसेंट नहीं है। ये और ये यदि अलग अलग है, ये बिल्डिंग अलग है, तो पड़ोसी होंगे दोनों, लेकिन पूरा एक बिल्डिंग ये एंगल को लिए ये वाले और इसको पूछेंगे तो नहीं होगा। तो ये तो हो गया पड़ोसी के उससे। नाउ वी हैव टू फुलफिल दिस बाय मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हमको तो फिट करना है ना, तो इसमें से कौन सा वाला नहीं हो रहा है देखते हैं। टू दे हैव कॉमन वर्टेक्स, ये पूरा एंगल लेना, ये पूरा एंगल, ये वाला, ये पूरा एंगल लेते हैं और ये वाले दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स है, ये तो राइट हो गया। ये और ये दोनों का वर्टेक्स, तो पहला वाला तो फुलफिल हो गया। सेकेंड पॉइंट, दे हैव कॉमन आर्म, तो देखते हैं ये एंगल किससे बना है? इन दोनों से, ये और ये किससे बना है? ये वाले आर्म और ये वाले, तो क्या दोनों के पास कॉमन आर्म है? ये वाला दोनों में कॉमन हो गया। पिछले एग्जाम्पल में क्या मैं बताया था? ये कॉमन था, दिस वाज कॉमन, लेकिन अभी कौन कॉमन आ गया? इस फिगर के हिसाब से ये कॉमन आ रहा है, दिस वन कॉमन, तो क्या होगा? दूसरा वाला तो राइट हो गया, कॉमन आर्म भी हो गया, कॉमन वर्टेक्स हो गया। अब तीसरा जो पॉइंट है वो फुलफिल नहीं करेगा। कैसे? ये आपका कॉमन है, तो जो अनकॉमन है वो क्या बोलता है कि अनकॉमन जो है दे शुड लाई अपोजिट साइड, एक कॉमन के ऊपर एक कॉमन के नीचे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है देखो, एक कॉमन है तो दोनों एक ही तरफ लाई कर रहा है, वन शुड बी दिस साइड एंड वन अप साइड, तो ऐसा नहीं हुआ। तो दिस क्या लिखे हैं? नो कॉमन आर्म्स डू नॉट लाई अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, मतलब थर्ड पॉइंट ये फुलफिल नहीं किया, दैट इज वाई आंसर है नो। तो यू विल राइट इन योर फेयर कॉपी क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स विद द रीजन, जैसे मैं लिखा हूँ ना, यस और नो। यस है तो नो नीड टू राइट एनी रीजन, बट नो है तो उसका आपको रीजन भी लिखना है। सो यू कंप्लीट दिस। इफ यू वांट क्वेश्चन नंबर 6, 7 यू कैन डू इन बुक। वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, 6, 7 यू विल सॉल्व इन कॉपी, 6 को यू कैन डू इन बुक, और 8 तो फिर इन द ब्लैंक्स है, कॉपी में कर लेना। और ये पेयर ऑफ एंगल, इसको नोट डाउन दिस डेफिनेशंस, इस डेफिनेशंस को नोट कर लो, और वर्कशीट 2 को सॉल्व इन योर फेयर कॉपी विद द डायग्राम एंड रीजन। ओके।